the gaseous molecules moves in random direction. Suppose there is a container. This is the cubical container. In which gaseous molecules are filled. There are so many gaseous molecules, like you can assume the air molecule present in the room. Okay, the air molecule present in the room moves randomly on zigzag path. My first question is this: why the gaseous molecule moves in the room? Why they move? If this is the gaseous molecule, any air molecule. हेलो Yes. मैम, अभी 5 मिनट वेट करेंगे आप? एक तो आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है. Hello. Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you? Yes, ma'am. What about you? Yeah, student, today we are going to start Candy theory of gaseous equation. Okay. Yes, sir. Am I audible? Sir. Okay. You all are the English medium student? Recording in progress. Hello. Yes, sir. Yes, sir. You all are the English medium students? Sir. Yes. Or some students are of Hindi medium? English medium, sir. English medium. All the students are English medium. Okay. Yes, yes. Now I am going to start the Candy theory of gaseous equation. In this, this is the cubical container. Suppose in the cubical container gaseous molecule are filled. There are so many gaseous molecules. Like in the room in which you are sitting, the air molecules are present. My question is first, these gaseous molecules are the air molecules. Suppose we are considering air molecule in the room in which you are sitting, there are so many air molecules. Why these air molecules moves? Why these air molecules moves? If any molecule moves with certain velocity, then it have kinetic energy. As you know, this kinetic energy is the half mv square. Now I want to know this kinetic energy is gained by the molecule because it is moving. From where it gets this kinetic energy? From where this molecule get this kinetic energy?
because energy cannot be created and cannot be destroyed. Because energy cannot be created and cannot be destroyed. So from which source this molecule gets kinetic energy? Anybody? Or change in temperature. Yes. No change in temperature. No. Temperature. According to Boltzmann, there was a scientist named as Boltzmann. According to Boltzmann, due to temperature on the Kelvin scale, every molecule possesses a thermal energy that is half kT. This half kT is the thermal energy per molecule per degree of freedom. Per molecule per degree of freedom. देखिए degree of freedom. What is a degree of freedom? Later on we discuss in detail degree of freedom. At present time, you can assume that the degree of freedom for the monoatomic is the 3, for diatomic is the 5, and for triatomic is the 6. At present, you can assume monoatomic like helium gas, this is the monoatomic, diatomic like O2, N2, and so on, and triatomic like CO2, NH3, and so on. CO2 is a linear molecule. You can say SO2. This is the triatomic. For linear atom, for a monoatomic, degree of freedom is a 3. For diatomic is a 5. So I am writing the total thermal energy of any of molecule. That will be eta into half kT. I am writing this is the total thermal energy. This is the total thermal energy of one molecule. It is not per degree of freedom. आपकी आवाज लैग होगी. I am saying the total thermal energy per molecule. Total thermal energy per molecule is the eta into half into K into T. Here K is the Boltzmann constant and T is the temperature on the Kelvin scale. This K, Boltzmann constant, its value is equals to 1.38 into 10 to the power minus 23. This is the air molecule. You are assuming air molecule present in the room, and this air molecule can be treated as triatomic molecule. This air molecule can be treated as triatomic molecule because it is a combination of the so many gases. Okay, so you can put the value of eta, that is the 6. Here you can put the value of eta, that is the 6. So the total kinetic energy of the air molecule, total kinetic energy of one air molecule, I am writing total kinetic energy of one air molecule. Anybody know the molecular weight of air? Anybody know the molecular weight of air? Total kinetic energy of one air molecule. Putting the value of eta is equal to 6 into half kT. That is 3 kT. That is 3 kT. So this is the thermal energy of one air molecule due to its temperature on the Kelvin scale capital T. And this thermal energy, according to Boltzmann, this thermal energy converted into kinetic energy. This thermal energy converted into kinetic energy. And when this thermal energy converted into kinetic energy, then the molecule gets velocity. So molecule, air molecule gets velocity in the room due to temperature. What is the velocity? What will be the velocity? So you can write this thermal energy is the 3 kT.
and the kinetic energy is the half mv square. What is m? Mass of one air molecule. Mass of one air molecule. From this you can conclude V equals under root 6. Hello. Hello. माइक ऑफ है. एक मिनट मैम सही करता हूँ. माइक ऑफ कर लूँ इसको. हाँ ठीक है. नहीं मेरी आवाज जा नहीं रही है क्या? अच्छा आवाज जा रही है ना? ठीक है ठीक ठीक. तो देखो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है, थोड़ा हिंदी में ही बोल रहे हैं, है ना. आप सभी लोगों ने बोला इंग्लिश मीडियम में, तो मैं इंग्लिश ही बोल रहा था. इसमें देख लीजिए क्या है. मैंने कहा मान लीजिए कि ये रूम है और ये रूम के अंदर एयर का मॉलिक्यूल है और एयर का मॉलिक्यूल ये मोशन कर रहा है, मतलब चल रहा है. तो देखिए अगर एयर का मॉलिक्यूल मोशन करता है इसके पास वेलोसिटी है. वेलोसिटी का मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है. तो मैंने क्वेश्चन ये राइज किया था कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, क्योंकि एनर्जी हम लोग जानते हैं इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आई, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि एक साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन ने बताया कि जैसे मान लो जिस रूम में ये एयर का मॉलिक्यूल है उस रूम का टेम्परेचर मान लीजिए कैपिटल टी है. तो अगर उस रूम का टेम्परेचर कैपिटल टी है तो जो एयर का मॉलिक्यूल होगा उसको टेम्परेचर के कारण कुछ एनर्जी मिलेगी. अब बोल्ट्जमैन ने क्या बोला कि इस दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल हो, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर वो कैपिटल टी टेम्परेचर पे रखा हुआ है, और केल्विन स्केल की बात कर रहा हूँ, अगर वो कैपिटल टी टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो उस एटम या मॉलिक्यूल के पास थर्मल एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं हाफ केटी. तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन थर्मल एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो हाफ केटी है ये उन्होंने बताया था कि दिस इज द थर्मल एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. हाफ केटी सभी के लिए इक्वल होगा. लेकिन जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो मैंने कहा कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होगा. अगर अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं, जैसे हीलियम ले लो तो हीलियम ये एटम है, ऑक्सीजन ले लो ये मॉलिक्यूल है, सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, मॉलिक्यूल है. तो इसमें कुछ मोनो एटॉमिक होते हैं, कुछ डाई एटॉमिक होते हैं और कुछ ट्राई एटॉमिक होते हैं. तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये मोनो एटॉमिक के लिए इसको हम 3 एज्यूम करते हैं, डाई एटॉमिक के लिए 5 लेते हैं, ट्राई एटॉमिक के लिए 6 लेते हैं. इस बात का ध्यान रखेंगे. इसमें भी बहुत सारी कहानी है, इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, है ना. लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की कहानी होती है. इसमें ट्राई एटॉमिक में भी कुछ मॉलिक्यूल लीनियर होते हैं तो उनके लिए अलग होता है. ये सब आगे जब हम थर्मोडायनामिक्स डील करेंगे तो उसमें आपको डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए आप ये मान लो कि जो मोनो एटॉमिक होगा उसके लिए 3, डाई के लिए 5, ट्राई के लिए 6. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, एयर मॉलिक्यूल की. ये जो हमने कहा कि जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल हैं, सब चलते रहते हैं. हमने एक एयर मॉलिक्यूल को पकड़ लिया और बोला कि जो एयर मॉलिक्यूल है, ये जो एयर मॉलिक्यूल है ये कैसा हो. तो एयर मॉलिक्यूल में सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि इसमें बहुत सारी गैसेस होते हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, है ना. 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और भी बहुत सारी इनर्ट गैसेस होती हैं. रफली हम ये कह देते हैं कि 80% नाइट्रोजन होता है और 20% ऑक्सीजन होता है, तो 100% मान लेते हैं. वैसे ऐसा होता है नहीं, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं. अब हम ये कह रहे थे कि जब बोल्ट्जमैन ने ये बोला कि पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केटी होता है, तो अगर हम एयर मॉलिक्यूल के एक एयर मॉलिक्यूल की हम काइनेटिक एनर्जी निकालने की बात करें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ केटी तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम था. तो यहाँ हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू को हम लिखते हैं ईटा. ये देखिए जो सिंबल लिखा हुआ ना ईटा, इसी से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये एन के फॉर्म में ऐसे बनता है, इसको हमने ईटा बोल दिया. तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करेस्पॉन्डिंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करेस्पॉन्डिंग
जो हमने थर्मल एनर्जी मानी वो कितनी मानी, हाफ KT। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, ईटा, जनरल लिख दिया गया। अब हम एयर मालिक्यूल की बात करेंगे तो ईटा की जगह 6 रख देंगे, है ना। तो अगर हम एक मालिक्यूल की बात करें, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन एयर मालिक्यूल, तो ये कितना होगा स्टूडेंट, ईटा की वैल्यू रख देंगे 6, तो हो जाएगा 6 into half into k into k, that will be 3 kT. It means this 3 kT is the kinetic energy of one air molecule. Now, according to Boltzmann, this thermal energy of air molecule converted into kinetic energy. ये जो थर्मल एनर्जी है ना, जिसको हिंदी में ऊष्मीय ऊर्जा ही बोलते हैं, ये थर्मल एनर्जी किसमें बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और इसी काइनेटिक एनर्जी से एयर मॉलिक्यूल को वेलोसिटी मिल जाता है और इसी से चलते रहते हैं। और एक चीज और बता दें, जैसे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो कोई कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो कि एक वायर ले लो, कोई कॉपर का वायर ले लो, है तो, या आयरन का वायर ले लो, कोई भी वायर ले लो, तो उस वायर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते रहते हैं। उसका भी कॉज यही है कि भाई कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों चलते रहते हैं, उनको कहाँ से वेलोसिटी मिल जाती है, उनको कहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो वहां भी हम यही कहते हैं कि वो वायर तो रूम में रखा हुआ है और रूम के पास टेम्परेचर होता है, तो रूम टेम्परेचर कैपिटल T पर वो जो एयर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, उनको ये थर्मल एनर्जी मिलती है, और वही थर्मल एनर्जी किसमें बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। इसी से उनको वेलोसिटी मिलती है और इसी कारण वो चलते रहते हैं। कंडक्टर के अंदर भी वो चलते रहते हैं जिग-जैग। आपने सुना होगा कि कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिग-जैग मोशन करते हैं, इधर से उधर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जितने भी जाते हैं वो सब चलते रहते हैं। और वही चीज, सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है कमरे के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स। कमरे के अंदर एयर के मॉलिक्यूल चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे एयर के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाए, कहीं पे कम हो जाए। हम क्या देखते हैं, जितने मॉलिक्यूल लेफ्ट से राइट में जाते हैं उतने ही मॉलिक्यूल राइट से लेफ्ट जाएंगे। वरना ऐसा होता कि कमरे के एक कॉर्नर में हवा ज्यादा हो जाती, एक कॉर्नर में हवा कम हो जाती, ऐसा नहीं होता है ना। तो एयर मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब जरा सा हम बात कर रहे थे इसकी वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी होगी कितनी। तो हमने कहा भाई ये जो काइनेटिक एनर्जी 3 kT है, इसको आप हाफ mv स्क्वायर के बराबर कर दो, ये हो जाएगा आपका 6 kT अपॉन m। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हाफ mv स्क्वायर जब हम करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो देखिए दो चेंजेस आते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करते तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रखते, 3। जैसे हमने यहाँ पे कितना रखा है, 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम क्या कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को मोनोएटॉमिक कंसीडर करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन है। और एयर मॉलिक्यूल को आपने ट्राई एटॉमिक कंसीडर किया तो आपने 6 रख दिया। तो एक चेंज वहां करते, जहां पे आपने 6 रखा है, यहाँ पे 6 की जगह आप 3 रख देंगे, तो ये 3/2 kT आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में 3/2 kT लिखते हैं, और राइट साइड में हाफ mv स्क्वायर। जब आप हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास होगा। अब यहाँ एयर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो एयर मॉलिक्यूल का मास होगा। तो ये जो m है, this m is the mass of the air molecule. This is a very important point, ये ध्यान रखिएगा। m क्या है, m है mass of one air molecule, total air molecule नहीं, एक molecule की बात कर रहा हूँ, mass of one air molecule। अब देखिए, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एयर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो किसी को पता है क्या एयर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? चलिए मैं कभी आपको निकाल के दिखाऊंगा कैसे आता है। वैसे अभी आप रफली इसको मान लीजिए 29.5 होता है तो 30 आता है, माने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, है ना, ये लगभग 30 के आसपास आता है। रफली कैलकुलेशन आसान कर लीजिए, 30 मानो 29.5 आता है। निकालते कैसे हैं वो भी आपको, चलिए मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या मानते हैं कि जो एयर है हमारा, ये थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात है इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा था। एयर मॉलिक्यूल में हम लोग क्या मानते हैं कि भाई 80% तो हमारा होता है ऑक्सीजन, और 20% हमारा होता है नाइट्रोजन, 20% हमारा नाइट्रोजन, ठीक। तो किसी भी, ये मिक्सचर हो गया, किसी भी मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फॉर्मूला होता है m = m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन x1
प्लस x2, ये फार्मूला होता है मिक्सचर का मालिकुलर वेट जितने भी गैसेस भरी हुई है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे 80% हमारी क्या है, ऑक्सीजन, 80% ऑक्सीजन है। तो देखो मालिकुलर वेट ऑफ ये मिक्सचर माने एयर का निकालना है, मालिकुलर वेट ऑफ एयर मालिकुलर M1 कितना हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मालिकुलर वेट कितना होता है स्टूडेंट 32, x1 कितना परसेंट लिया गया 80%, तो इसको आप लिख लीजिए 80 प्लस मालिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है 28, तो 28 होता है इसका मालिकुलर वेट, ये कितना परसेंट लिया गया है 20, और नीचे क्या हो जाएगा 100 माने 80 और प्लस कितना हो जाएगा 20। तो ये अभी कुल मिलाकर के आप सॉल्व कर लो, तो आप देखो ये कितना हो जाएगा, जीरो यहाँ से निकाल सकते हो, तो 8 2 जा 256 ये हो जाएगा प्लस, और इसको 28 और 2 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। सॉरी 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 ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, सॉरी ये नाइट्रोजन है ऑक्सीजन, तो ये हो गया 32 इंटू, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, एक मिनट ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये 80% नाइट्रोजन 20% ऑक्सीजन है, तो 80 के साथ क्या आएगा 28, 80 के साथ आएगा 28, 80 के साथ आएगा आपको 28 और इसके साथ आएगा 30, 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन बना जाता है। तो 80% ये हो गया आपका 80 इंटू नाइट्रोजन का 20, ठीक है, और ये 20% तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 8 8 जा 64, ये हो जाएगा आपका 8 8 जा 64 और 8 2 जा 224 और प्लस 32 और 2 64 अपॉन 80 और 2, अब देखिए जीरो मैंने कट कर दिया तो ये हो जाएगा 10, 28 इंटू 80%, 32 इंटू 20%, तो आप इसको ऐड कर लो, तो 224 और 64 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 448 628 288 288 और 288 को जस्ट 288 को आप डिवाइड कर लो 10 से, 288 ऊपर आ गया अपॉन 10, तो ये हो गया आपका 28.8, वही रफली 29 आता है, तो हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए 30 मान लिया। ये केमिस्ट्री की चीजें हैं, है ना, इसमें आप मिक्सचर ऑफ गैसेस का फॉर्मूला 3 गैसेस हो तो M1 X1 M2 X2 M3 ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो खैर यहाँ पे हमारा मालिकुलर वेट हमने एयर का 30 मान लिया, 29 नहीं मानना, थोड़ा कैलकुलेशन दिक्कत करेगा, इसलिए 30 मान लिया, आंसर रफली सेम आता है। तो मालिकुलर वेट ऑफ 30 हो गया। अब आप देखो मालिकुलर वेट की मीनिंग क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, जैसे हमने कहा भाई नाइट्रोजन का मालिकुलर वेट कितना है 28, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है, तो पहली बात तो आप समझ लो कि नाइट्रोजन का मालिकुलर वेट 28 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी यूनिट होती है क्या 28 ग्राम पर मोल, ये होता है। ये ऑक्सीजन का 32 होता है, माने 32 ग्राम पर मोल, एयर का आया 30, तो क्या है 30 ग्राम पर मोल। मोल का मतलब क्या होता है, मोल से आपको घबराना नहीं है, मोल आपका क्या है एवोगैड्रो नंबर, मोल इज द एवोगैड्रो नंबर, एक नंबर होता है जिसको हम लोग रफली क्या बोलते हैं 6 × 10⁻23 या 0.023 भी लगता है, 6 × 10⁻23, मतलब आप समझो क्या है, नाइट्रोजन का मालिकुलर वेट 28 ग्राम पर मोल है, इसकी मीनिंग ये होती है कि नाइट्रोजन के 6 × 10⁻23 मालिकूल्स का जो वेट होगा, मास होगा, वो 28 ग्राम होगा। ये किसी चीज के मालिकुलर वेट का मतलब होता है, किसी का भी, जैसे हीलियम का होता है 4, तो हीलियम का मतलब 4 ग्राम पर मोल, मतलब हीलियम के 6 × 10⁻23 एटम्स लेंगे तो उसका मास 28 ग्राम। अब जैसे मालिकुलर वेट ऑफ एयर 30 आ गया, तो मालिकुलर वेट ऑफ एयर 30 आने का मीनिंग क्या हुआ कि 6 ×
10 to the power 23. 6 into Sir, 10. Yes. 6 into 10 to the power 23. sir, Air 6.022 होगा वहाँ पे. यस यस यस, हम रफली मैं ले रहा हूँ कैलकुलेशन इजी लिखने के लिए. वैसे 6.023 होता है ना. 6.023 इंटू 10 पावर 23 होता. थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिया, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है ना. तो आप ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट में 6 इंटू 10 पावर 23 आप ले सकते हो. जबकि एग्जैक्ट वैल्यू 6.023 होती है, वो आपने सही बोला. बट कैलकुलेशन जैसे हमने यहाँ 28.8 आया है, तो मैंने रफली इसको 30 ले लिया है. थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है. तो 6 इंटू 10 पावर 23 एयर मालिक्यूल का मास कितना हो गया? 30 ग्राम. 30 ग्राम. अब देखिए 6 30 से कट जाएगा, मैंने इसलिए 30 लिया है थोड़ा इजी करने के लिए कैलकुलेशन को. आप 28.8 ही लेके सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो 6 इंटू 10 पावर 23 एयर मालिक्यूल का मास कितना हो गया? 30 ग्राम. इसका मतलब 1 एयर मालिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? तो 1 एयर मालिक्यूल का मास हो जाएगा 30 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम. अब इसको काट दीजिए तो आप क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम. अब ये क्या आया? 5 इंटू 10 पावर -23 ग्राम. क्या आया स्टूडेंट? ये आया मास ऑफ 1 एयर मालिक्यूल. मास ऑफ 1 एयर मालिक्यूल. एक मालिक्यूल का मास आ गया. यही मैं ढूंढ रहा था. जैसे इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता है, जब इलेक्ट्रॉन वाला सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता ही होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है. 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, है ना. तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता रहता है, उसमें डायरेक्ट लिख सकते. अब जब हमने इसीलिए एयर वाला कराया, एयर वाला एग्जाम्पल कराया आपको कि आप थोड़ा सा ये मालिकुलर वेट और मालिकुलर वेट से मास निकालना आप समझ जाओ. तो देखिए अब आ गया मास ऑफ 1 एयर मालिक्यूल 5 इंटू 10 पावर -23 ग्राम. अब जरा देखिए आप फॉर्मूले में कहाँ आए थे? V इज इक्वल टू √6 kT अपॉन m. आप यहाँ पर थे, V इज इक्वल टू √6 kT अपॉन m पर थे, है ना. तो अब हम इसे से सॉल्व करते हैं. वेलोसिटी ऑफ एयर मालिक्यूल, जो कमरे में हमारे एयर के मालिक्यूल हैं वो किस स्पीड से चलते हैं, उसका रफली अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि कमरे के मालिक्यूल किस स्पीड से चलते हैं. देखिए हमने आपको बताया था V इज इक्वल टू √6 kT अपॉन व्हाट? m. m is the mass of one air molecule. अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं. अब देखिए रूम का टेम्परेचर क्या होता है. वैसे रूम का टेम्परेचर नॉर्मली हम लोग जो मानते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, ठीक है. लेकिन फिर मैं यहाँ थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ. मैं 25 ना लेकर के 27 ले रहा हूँ. क्यों 27 ले रहा हूँ? कि 27 लेंगे तो हमें तो केल्विन में लेना है. इसमें 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा. ये 300 केल्विन हो जाएगा. तो टेम्परेचर को हम 27 ले रहे हैं, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर. अब आप देखिए 6 और k की वैल्यू कितनी है डियर? 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23. और टेम्परेचर कितना है? अभी आपने लिखा 300, मैंने लिख दिया इसको, चलो 300 अपॉन. देखिए मास ऑफ 1 एयर मालिक्यूल तो कितना आया था? 5 इंटू 10 पावर -23 ग्राम. ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -23. अब देखो 10 पावर -23, ये ऊपर से और नीचे से क्या हो गया? कैंसिल. और ये 5 को आप इससे कैंसिल कर सकते हो तो 60. तो ये अंदर क्या हुआ? Thank you, sir. ये ओवर, ये अंदर क्या होगा स्टूडेंट? 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू, हेलो सर स्क्रीन शेयर नहीं है आपको. स्क्रीन शेयर नहीं है? सर ओके ओके, आई एम शेयरिंग स्क्रीन.
आ गया स्क्रीन शेयर? यस सर। ओके। तो स्टूडेंट अब ये हो गया 6 इंटू 60 इंटू 1.38, तो रफली आप देखो कितना हो जाएगा ये 1.38 को 1.4 लिख लें और ये हो जाएगा 36 यानी 360 इंटू 1.4 360 into 1.4 or you can say under root 36 into 14. 36 is approximately 6. Under root 14 is approximately 4. And 4 4 is 16. So roughly we can say this is the 24 meter per second. So this is the speed of the air molecule with which they moves randomly. अप्रोक्सीमेटली ये जो स्पीड है, वैसे ये स्पीड फिक्स नहीं है स्टूडेंट, ये फिक्स नहीं है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर आप चेंज कर दोगे तो ये स्पीड चेंज कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो थर्मल एनर्जी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगा। मान लिया आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिल रही थी वो इंक्रीज कर जाएगी, तो जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी, सारी चीजें इंक्रीज कर जाएंगी। तो हमने रफली आपको दिखाया कि जो इस कमरे के अंदर एयर के मॉलिक्यूल हैं वो इस स्पीड से चल रहे हैं, जो भी आया वो। अब हम मान लेते हैं ये स्पीड v, दिस इज द स्पीड v। अब ये मॉलिक्यूल, यस सर वो ऊपर आपने रूट 14 लिख दिया, नीचे कर दूं? अरे यहाँ पे सर आपने रूट 14 को लिख। हाँ, क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलिए क्या कह रहे हैं? इंटू 4 कर रहा है, वो 4 नहीं होगा ना, वो तो रूट 14 हो जाएगा। रफली निकाल सकते हैं ना, बट रफली यू कैन से रफली 36 का कितना हो जाएगा ये 1.38 है ना, तो रफली इसको 1.4 लिख दिया ना, ये 0 हटाओगे तो 14 हो जाएगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करना, नो प्रॉब्लम। मैं तो रफली एक आइडिया बताया कि इस तरह से इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ओके ठीक है, क्या कह रहे हैं? हाँ हम कुछ नहीं कर रहे। तो अब आप देखो अब क्या होता है इसमें, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके पास जो वेलोसिटी v है, ये देखिए 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। मॉलिक्यूल कमरे में कैसा मोशन करता है? 3 डायमेंशनल। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं थोड़ा सा, अब जब डायमेंशन की बात आ गई है ना, तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा। 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन। तो जनरली कंफ्यूजन क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है तो वो 1 डायमेंशन होता है, और अगर कर्व पे मोशन हो रहा है तो 2 डायमेंशन होता है। जो मैं बोल रहा हूँ क्या ये ट्रू है? हमने कहा अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मोशन करेगा तो 1 डायमेंशन होगा, और अगर कर्व पे करेगा तो 2 डायमेंशन होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप क्या कहना चाहते हैं? चलो खैर टाइम नहीं वेस्ट करते, स्ट्रेट लाइन का मतलब 1 डायमेंशन नहीं होता है, बस आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये सब काइनेमेटिक्स का पार्ट है, उसमें एक्सप्लेन होता है। ठीक है ना, ये आप मत सोचिएगा अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा तो 1 डायमेंशन होगा। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो वो 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, ये समझ लीजिएगा। खैर ये मॉलिक्यूल तो खैर जिगजैग मोशन करता है, तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं कि ये 3 डायमेंशनल मोशन करता है। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, देखिए ये क्या कहता है। एक्चुअल में ये सब जो बातें कर रहे हैं ना स्टूडेंट, ये हम बातें कर रहे हैं आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। जैसे दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक आइडियल होते हैं, एक नॉन आइडियल होते हैं, है ना। तो वैसे ये मॉलिक्यूल जो है ये आइडियल मॉलिक्यूल है, मैं इसकी बात करता हूँ। ये जो आइडियल होता है ये क्या करता है, ये कहता है भाई हमारे पास v वेलोसिटी है तो x वाले को थोड़ा सा दे देता है, कहता है ये लो तुम vx। y डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को ये थोड़ा सा दे देता है, कहता है ये लो vy।
और जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा एनर्जी दे देता है, इसको कहता है वी जेड। अब देखिए वेलोसिटी क्या देता है, तो एनर्जी देता है। भाई एनर्जी मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए किसी आदमी के 3 लड़के हैं, उसके पास कुछ रुपए हैं, तो उसने क्या किया, उन रुपयों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जितना पहले को दिया उतना ही दूसरे को दिया, इतना तीसरे को दिया। ये काम कौन करता है, ये काम तो आइडियल ही करता है ना, आइडियल नहीं करता। तो इसीलिए जो एयर मालिक्यूल्स हैं इनको हम अगर आइडियल मानते हैं, अब आइडियल की पोस्टुलेट क्या है अभी वो भी आपको बता देंगे कि कोई भी गैस आइडियल कब होती है, क्या कंडीशन होती है ना। जैसे आदमी आइडियल कब कहलाता है, उसकी बहुत सारी पोस्टुलेट होती है, तभी वो आइडियल कहलाएगा। वैसे ही एक गैस मालिक्यूल आइडियल कब कहलाएगा, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल मैं इसको क्या मानता हूँ कि ये आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। माने इस डायरेक्शन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो kx, इस डायरेक्शन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ky, इस डायरेक्शन में जो एनर्जी होगी kz। तो अगर हम बात करें kx और प्लस ky और प्लस kz, तो ये जो तीनों एनर्जीज होंगी इनका सम जो होगा वो k के इक्वल होगा। और आपको पता है कि kx, ky, kz तीनों इक्वल होते हैं, तो यू कैन से दिस इज इक्वल टू 3kx, ky भी kx रख दीजिए, kz भी, तो 3kx इज इक्वल टू k, मीन्स kx विल बी k by 3। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू ky, यही आपका क्या हो जाएगा ky, यही आपका क्या हो जाएगा kz। माने तीनों एनर्जीज जो होंगी वो k/3 हो जाएंगी। अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। देखिए एनर्जी में जरा ध्यान दीजिएगा, kx प्लस ky प्लस kz, लेकिन मैं क्या vx प्लस vy प्लस vz भी लिख सकता हूँ कि ये v के इक्वल होगा? नो। देखें ध्यान से बात, काइनेटिक एनर्जी में तो मैंने लिख दिया kx प्लस ky प्लस kz इज इक्वल टू की होगा, k होगा, लेकिन वेलोसिटी में हम ऐसा नहीं लिख सकते। कोई बताएगा ऐसा क्यों? हमने कहा काइनेटिक एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो वेलोसिटी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, vx vy vz तीनों इक्वल हो जाए। मतलब ये v इज इक्वल टू vx प्लस vy प्लस vz लिख दें, ये vx vy vz तो इक्वल होंगे, वो तो अलग की बात है। हमने कहा कि ये v इज इक्वल टू vx प्लस vy प्लस vz लिख दें, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि y की काइनेटिक एनर्जी k है, तो हमने कहा इधर kx इधर ky इधर kz, तो k हो गया kx प्लस ky प्लस kz। तो ऐसे यहाँ भी तो लिख सकते हैं, अगर इधर वेलोसिटी v है और इधर vx है, इधर vy है, इधर vz है, तो क्या हम v इज इक्वल टू vx प्लस vy प्लस vz लिख सकते हैं? मैं कह रहा हूँ नहीं लिख सकता हूँ। तो क्यों ऐसा, k को लिख सकता हूँ पर v को क्यों नहीं लिख सकता हूँ? एनीवन टेल मी? देखो स्टूडेंट, k जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो हमारा वेलोसिटी है v, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में ये नहीं होगा, इसको वेक्टर रूल फॉलो करना पड़ेगा, इसको वेक्टर रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर इसका x कंपोनेंट vx है, y कंपोनेंट vy है और z कंपोनेंट vz है, तो इसकी वेलोसिटी को हम जब लिखेंगे, इसकी वेलोसिटी वेक्टर को हम लिखेंगे, थोड़ा सा वेक्टर लगाना पड़ेगा, दैट इज vxi प्लस vyj और प्लस vz के, हमें ये लिखना पड़ेगा vxi प्लस vy प्लस vz प्लस vz। ये जो वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट vx, y कंपोनेंट vy, z कंपोनेंट vz है, तो हम वेलोसिटी वेक्टर को लिखेंगे vxi प्लस vyj प्लस vz के। अब हम इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहेंगे तो आपको पता होगा वेक्टर से, v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ये वेक्टर के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं, ना कि v इज इक्वल टू vx प्लस vy प्लस vz लाइक k इज इक्वल टू kx प्लस ky प्लस kz हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v स्क्वायर होगा आपका vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। हाँ ये बात अलग की है कि यहाँ पर भी हमारा ये vx vy vz इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 3vx स्क्वायर। अगर हम इसको v स्क्वायर इज इक्वल टू 3vx स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ से vx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट? v स्क्वायर बाई 3, और यही आपका क्या हो जाएगा vy स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा vz स्क्वायर। तो vx स्क्वायर v स्क्वायर बाई 3 होगा, vy स्क्वायर v स्क्वायर बाई 3 होगा, vz स्क्वायर v स्क्वायर बाई 3 होगा। काइनेटिक एनर्जी की जब बात कर रहे हैं तो kx ky kz ky 3 आ रहा है।
अब आप देखो, अब इंपॉर्टेंट बात आता है, ये मालिक्यूल जब चलते रहते हैं तो क्या होता है। ये मालिक्यूल सिंपली, अब आइए आप कंटेनर पे, एक दीवार ये है हमारी, जिस रूम में आप बैठे हैं एक दीवार ये, ठीक, और उसके सामने वाली दीवार, सामने वाली वॉल ये मान लीजिए ये नंबर 2 वॉल है, ये नंबर 1 वॉल है, ये नंबर 2 वॉल है। अब आप देखो, एक मालिक्यूल जो हमारा एयर का है, हम ये मानेंगे एक्स डायरेक्शन में vx स्पीड से चल रहा है स्टूडेंट, ये vx स्पीड से चल रहा है। जब ये vx स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा, तो जरा ध्यान से देखिए, अभी चल रहा vx, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये vx स्पीड से इससे कोलाइड करेगा, ये vx स्पीड से कोलाइड करेगा। और ये ध्यान रखें, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस है। तो क्या होगा, जो आइडियल गैस होता है, जिस स्पीड से टकराएगा, जिस स्पीड से कोलाइड करेगा, उसी स्पीड से रिबाउंड करेगा। अब ये क्या करेगा, ये रिबाउंड कर जाएगा vx स्पीड से, तो अब ये इसी vx स्पीड से चलता रहेगा, और यहाँ पहुंचेगा, फिर ये vx स्पीड से इधर कोलाइड। अब आप देखिए, यहाँ पे t=0 हम बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं t=0, जब मालिक्यूल ये चल रहा था ऐसे। अब इससे कोलाइड किया, फिर कोलाइड करने के बाद फिर ये डायरेक्शन बदलेगा, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो माने ये डायरेक्शन जो पहले था, फिर वही डायरेक्शन ये आ रहा है, कितने टाइम के बाद आ रहा है, मान लीजिए t टाइम के बाद आ रहा है ना। ध्यान से सुनिएगा बात को, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड काइनेमेटिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्वेश्चन फिनिश। अगर आप ये समझ गए तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाएगा। ये vx स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा था, यहाँ से कोलाइड किया इस डायरेक्शन में। अब कोलाइड करने के बाद ये क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। ये आइडियल गैस है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है स्टूडेंट, तो जिस स्पीड से मालिक्यूल कोलाइड करता है, उसी स्पीड से मालिक्यूल रिबाउंड करता है। तो यहाँ ये vx से कोलाइड कर रहा, vx से रिबाउंड कर रहा। अब ये आता गया यहाँ, फिर जब यहाँ पे कोलाइड किया तो ये डायरेक्शन पलटा। तो देखिए, ये टाइम t=0 है, ये टाइम t। हम इस टाइम t को निकालना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि जो इसका लेंथ है वो l है। एक दीवार से दूसरे दीवार की लेंथ कितनी है, जिस कमरे में बैठे हो आप, उसकी लेंथ मान लो l, विड्थ मान लो l, हाइट मान लो l। क्यूबिकल कंटेनर मैंने कहा था मानने के लिए, तो जिस रूम में आप बैठे हो उसका लेंथ l मान लो, विड्थ l मान लो, और हाइट l मान लो। तो ये देखिए, मालिक्यूल यहाँ से चला कितना डिस्टेंस l, फिर यहाँ से लौट करके आया कितना डिस्टेंस l, और फिर टाइम ये आ गया, ये टाइम आ गया। तो ये यहाँ से चला vx से, फिर लौटा किससे, vx से, लेकिन टाइम कितना चला, ये जो टाइम चला, सॉरी ये जो डिस्टेंस चला, ये कितना डिस्टेंस चला, l गया और l आया 2l। तो टाइम कितना हुआ स्टूडेंट, टाइम हो गया 2l/vx। इतने टाइम के बाद फिर उसका डायरेक्शन वही हो गया। माने देखिए, अब देखिए यहाँ पे जब ये ऐसे चल रहा था, तो थोड़ा सा हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम इसका क्या होगा, mvx। और इस लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो चलो हम p लिख लेते हैं, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। क्योंकि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, जो स्पीड का डायरेक्शन होता है। तो ये इधर चल रहा था, तो इसका लीनियर मोमेंटम इधर हो गया। फिर यहाँ पे कोलाइड किया, डायरेक्शन इधर हो गया। तो यहाँ अब देखिए, जब यहाँ पे भी इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, mvx, और इसका डायरेक्शन कितना है, इधर है। हाँ, यहाँ पे जब ये कोलाइड किया तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, mvx। इसको मैं p डैश लिख रहा हूँ। लेकिन अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन का खेल होता है इसमें। इधर डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन इधर हो गया। अब यही डायरेक्शन यहाँ तक चला। अब जब ये यहाँ पर है, देखो ये t=0 पे इसका लीनियर मोमेंटम इधर था, t टाइम पे इसका लीनियर मोमेंटम किधर है, इधर लेफ्ट साइड में। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो इसका जो लीनियर मोमेंटम p डैश, वो क्या होगा, mvx। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो 0 टाइम पे इसका लीनियर मोमेंटम इधर था, और t टाइम पे लीनियर मोमेंटम इधर है। लेकिन अब इस टाइम के जस्ट बाद लीनियर मोमेंटम वही डायरेक्शन होने वाला है। तो जो इसके लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ, वो पहले mvx इधर था, तो इसको हम प्लस कहेंगे, और ये mvx इधर हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। अब फिर वही मोमेंटम होने वाला है ना। तो जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, कहाँ से, mvx प्लस से mvx माइनस में, वो सब काम कितने टाइम में हो रहा है, 2l/vx।
और इसके मोमेंटम में चेंज हुआ क्यों, ये भी आप समझिए। जब ये मॉलिक्यूल चल रहा था तो इस दीवार से टकराया है, इस वॉल से टकराया है, तो इस वॉल ने इस पे क्या लगाया, फोर्स, और जब फोर्स लगता है तो मोमेंटम में क्या होता है, चेंज। तो इस दीवार पे ये मॉलिक्यूल टकराया, तो इस दीवार ने इस मॉलिक्यूल ने वॉल पे क्या किया, फोर्स लगाया। तो जब इस मॉलिक्यूल ने वॉल पे फोर्स लगाया तो वॉल ने इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाया, है ना, इसीलिए इसका डायरेक्शन क्या कर गया, चेंज कर गया है। तो आप क्या कह रहे हो कि ये जो मॉलिक्यूल है ये वॉल पे फोर्स लगा रहा है, दूसरा वाला भी फोर्स लगा रहा है, तीसरा वाला भी फोर्स लगा रहा है, चौथा वाला भी फोर्स लगा रहा है, पांचवा वाला भी फोर्स लगा रहा है, माने जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल इस वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं। और जब सारे मॉलिक्यूल इस वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं तो वॉल के पास तो एरिया होता है, इसका लेंथ होगा, इसका विड्थ होगा, इसका माने यहाँ पे ये प्रेशर लगाएगा, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। खैर अभी मैं आता हूँ, देखिए इसके मोमेंटम में हम चेंज निकालते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसके जो लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा वो क्या, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी, दैट इज डेल्टा पी, इसको हम डेल्टा पी से लिखते हैं। ये क्या होगा स्टूडेंट, देखिए पहले ये प्लस एम वी एक्स था, अब माइनस एम वी एक्स हो गया। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपीज है, सपोज कर लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, आज के डे में 100 रुपीज है, और कल के डेज में आपने 100 रुपीज किसी से ले रखे हैं, तो आपने कितना खर्चा किया होगा। आज आपके पास 100 रुपीज है और कल आपने 100 रुपीज किसी से ले भी लिया, तो आपने कितना खर्च किया, 200, क्योंकि 100 तो आपके पास थे, 100 आपने खर्च किया और 100 आपने किसी से लेके खर्च कर दिया। तो जो लिया जाता है, जो आपके पास है उसको प्लस माना जाता है, और जो आपने लिया उसको क्या माना जाता है, माइनस। तो पहले इसका मोमेंटम कितना था, प्लस एम वी एक्स, अब इसका मोमेंटम कितना हो गया, माइनस एम वी एक्स। इसके मोमेंटम में चेंज हुआ है ना, प्लस 100 से माइनस 100 हो गया, प्लस 100 से माइनस 100 हो गया, माने क्या हुआ, चेंज हुआ। चेंज माने क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, इसका मोमेंटम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो कितने से डिक्रीज हो गया, जैसे 100 को हमने डबल किया तो 200 मिला था, तो यहाँ एम वी एक्स को डबल कर दो तो कितना मिलेगा, ये डेल्टा पी लिखा जाएगा, सॉरी डेल्टा, ये कितना हो जाएगा 2m vx। तो इसके मोमेंटम में चेंज कितने का बैठा है, 2m vx में, और ये जो मोमेंटम का चेंज बैठा है कितने टाइम में हुआ है, इसी टाइम में हुआ है, 2l अपॉन vx। अब जरा न्यूटन साहब को याद करिए, न्यूटन साहब ने क्या बताया था स्टूडेंट, न्यूटन ने बताया था कि जो फोर्स होता है ना वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, माने 1 सेकंड में मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा, वही फोर्स होता है। देखो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं कि भाई डेल्टा टी टाइम में मान लीजिए मोमेंटम में चेंज क्या हो रहा, डेल्टा पी, तो यूनिट टाइम में मोमेंटम में चेंज कितना होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यूनिट टाइम में जो मोमेंटम में चेंज होता है उसी को फोर्स कहते हैं, फोर्स कुछ अलग नहीं होता है। 1 सेकंड में जो किसी सिस्टम के मोमेंटम में चेंज हो जाता है वही फोर्स होता है। तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा पी कितना हो गया, 2m vx, और डेल्टा टी की क्या बात करें, टाइम, तो टाइम अभी आपने निकाला था कितना आया था, 2l अपॉन vx। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हो जाएगा m vx स्क्वायर अपॉन l, और vx की स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने बताया था v स्क्वायर बाई 3 आया था, तो mv स्क्वायर बाई 3l। देखो ये vx स्क्वायर v स्क्वायर बाई 3 आया था कि नहीं आया था, देखो यहाँ से vx स्क्वायर क्या आया था, v स्क्वायर बाई 3। हमें vx से मतलब थोड़ी ना, हमें तो v पता है ना, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पता है ना, तो v हमने लिख लिया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, देखिएगा यहाँ से हमें क्या मिला, जो फोर्स हो गया स्टूडेंट वो हो गया mv स्क्वायर अपॉन 3l। अब हम बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, सॉरी फोर्स कितना आ गया है, mv स्क्वायर अपॉन 3l। और अगर एरिया की बात करें तो वॉल का एरिया, हमने कहा था जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की लंबाई l, चौड़ाई l, ऊंचाई l, लेंथ विड्थ हाइट सब l है। तो जो दीवार होगा उसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो उसका एरिया हो जाएगा l स्क्वायर। इज इट क्लियर।
क्योंकि दीवार का हमने क्या बताया, एल एल एल, तो एल एल है तो एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर। अब यहाँ देखो एल स्क्वायर और एल को मल्टीप्लाई करोगे तो एल क्यूब, एल क्यूब क्या हो गया भाई, लेंथ एल है, विड्थ एल है, हाइट एल है, ये तो मालूम हो गया। तो ये हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन 3, ये बड़ा वी लिख रहे हैं, ये वॉल्यूम है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया प्रेशर, ये क्या हो गया प्रेशर। यहाँ एम क्या है, मास ऑफ वन एयर मालिक्यूल, मास ऑफ वन एयर मालिक्यूल, ध्यान रखिएगा। ये एक मालिक्यूल के कोलिजन्स करने से इतना प्रेशर लगेगा, लेकिन आपको पता है इसमें एक मालिक्यूल थोड़ी ना है, इसमें तो बहुत सारे मालिक्यूल है, 10 मालिक्यूल हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं कमरे के अंदर, है ना। तो मान लीजिए कि n मालिक्यूल है, तो जो टोटल प्रेशर होगा, इसको मैं इसीलिए P डैश लिख रहा हूँ, ये टोटल प्रेशर जो हो जाएगा इसको हमको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि P डैश जो प्रेशर है वो तो एक मालिक्यूल ने जो लगाया वो है, और यहाँ तो n मालिक्यूल, सारे मालिक्यूल दीवार पे जाके टकरा रहे हैं ना, तो सब प्रेशर लगाएंगे, तो n P डैश हो जाएगा n इंटू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 3 इंटू वी। या इसको थोड़ा मैं ठीक से मैनिपुलेट करके लिख लूं, ये हो जाएगा 1/3 m इंटू n इंटू वी स्क्वायर। अब ये v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में भी बहुत सारा चक्कर है, कौन सी वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, ये सब भी देखना पड़ेगा अभी हमको। फिलहाल ये देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, P इज इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर अपॉन v, ये बड़ा वाला v है, ध्यान रखिएगा, ये वॉल्यूम वाला v है। अब m क्या है स्टूडेंट, मास ऑफ वन एयर मालिक्यूल, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल जो टकरा रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n, इसको हम W लिख रहे हैं। W क्यों लिख रहे हैं, W क्या होगा जरा बताओ, कोई बताओ W क्या होगा यहाँ पे। W देखिए एक मालिक्यूल का मास m है, टोटल मालिक्यूल n है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टोटल जो मालिक्यूल होंगे उनका मास मिल जाएगा, और टोटल मालिक्यूल का मास क्या होगा, गैस का मास। तो यहाँ W क्या होगा, मास ऑफ द गैस, ये ध्यान रखिएगा। उस कमरे में, उस डब्बे में जितनी भी गैस भरी हुई है उनका मास है, मास ऑफ गैस। एक मालिक्यूल का मास नहीं है, एक मालिक्यूल का मास क्या है m, और उस कमरे के अंदर मालिक्यूल कितने n, तो m इंटू n की बात करें तो क्या हो गया W। W इज द टोटल मास ऑफ द गैस, टोटल मास ऑफ द गैस, जैसे कमरे में जितने भी एयर के मालिक्यूल भरे हुए हैं उनका जो मास है वो W हो गया, और इंटू क्या हो गया v स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये मास ही तो है, मास अपॉन वॉल्यूम की बात करें तो डेंसिटी होता है, ये हो गया P इज इक्वल टू 1/3 rho v square. So this is the derivation for the pressure exerted on the wall by the gaseous molecule which are placed in the container. So this is the P is equal to 1/3 rho v square. Now what is this V? Rho is the density of the gas, the density of the air molecule. What is V? Here V is the RMS speed, RMS speed। ये RMS speed क्या है भाई, देखिए समस्या क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कमरे के अंदर एक मालिक्यूल तो है नहीं, बहुत सारे कमरे के अंदर मालिक्यूल है, एक मालिक्यूल थोड़ी ना है। उसमें कुछ मालिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी v1, कुछ मालिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी v2, कुछ मालिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी v3, कुछ मालिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी vn। ध्यान से सुनिएगा, ये हमने वो डब्बा बनाया जिसमें बहुत सारे मालिक्यूल हैं, मान लीजिए n1 मालिक्यूल हैं और जिनकी वेलोसिटी v1 है, ठीक। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक, इस दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे क्या होंगे 11th क्लास में होंगे, बहुत सारे क्या होंगे 12th क्लास में होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, सबका ग्रुप अलग अलग बना है ना, स्टूडेंट सभी हैं, लेकिन क्या है कोई 11th में है, कोई 10th में है, कोई फर्स्ट में है, कोई किसी में है। तो हमने कहा कि और ऐसा नहीं कि एक ही स्टूडेंट 11th में होगा, एक ही स्टूडेंट 12th में होगा, तो कमरे के अंदर जो एयर मालिक्यूल है ना, ये बहुत सारे मालिक्यूल है,
तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी सेम होती है, तो उनको हमने पकड़ के एक साथ रख लिए। हमने कहा ऐसे कितने हैं n1, ऐसे कितने हैं n1, जिनकी वेलोसिटी कितनी है v1। इसी तरह से हमने उनको पकड़ा बहुत सारों को जिनकी वेलोसिटी कितनी थी v2 सेम थी, तो उनको हमने इसमें रख दिया डब्बे में। मान लीजिए वो n2 है। कुछ और हमने पकड़े जिनकी वेलोसिटी सेम थी, उनको हमने तीसरा डब्बा बना दिया, उसको हमने v3 कह दिया, और इसमें मान लीजिए n3 मालिक्यूल है। ऐसे ही जो लास्ट वाला हमने डब्बा बनाया, हमने कहा भाई इनकी वेलोसिटी क्या है v1 vn है, और ये क्या है nn है मालिक्यूल। अब अगर हम टोटल मालिक्यूल की बात करें, कम डब्बे के अंदर टोटल मालिक्यूल, कमरे के अंदर टोटल मालिक्यूल क्या हो गए, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस क्या होता है nn, प्लस क्या होता है nn। अब देखो जैसे आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो, तो किसी में नंबर कुछ आते हैं, किसी में कुछ आते हैं, किसी में कुछ आते हैं, तो क्या किया जाता है, सबका एवरेज निकाला जाता है। आपका जो रिजल्ट बनता है तो सबका एवरेज, क्योंकि सब में बराबर मार्क्स थोड़ी ना है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो इसमें जो मालिक्यूल्स हैं, किसी की स्पीड v1 है, किसी की v2 है, किसी की v3 है, किसी की vn है, सबकी सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एवरेज निकालते हैं। भाई मालिक्यूल की वेलोसिटी है क्या, वो जो आपने एयर मालिक्यूल की जो वेलोसिटी निकाली थी, जो मैंने आपको तरीका बताया था थर्मल एनर्जी से ये वो करके, वो कौन सी वेलोसिटी है, वो तो ये v1 v2 v3 vn वाली वेलोसिटी है ना। ये रफली सेम ही होती है, v1 और v2 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, v2 v3 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, v3 vn में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, ये लगभग सेम ही होंगे, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे। तो हमें क्या निकालना पड़ता है एवरेज स्पीड। तो जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं स्टूडेंट, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे n1 इस मालिक्यूल ऐसे थे जिनकी स्पीड v1 थी, तो हो गया n1 v1। n2 मालिक्यूल ऐसे थे जिनकी स्पीड v2 है, तो क्या हो गया n2 v2। n3 मालिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड v3 है, तो क्या हो गया n3 v3। तो फिर आगे क्या हो गया nn vn। तो ये सारे मालिक्यूल की स्पीड को सम किया, एवरेज निकालने का तरीका, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल, दैट इज n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nn प्लस nn, ये कर दिया। अब इसको एवरेज स्पीड का लिखने का तरीका ऐसे होता है, सिंबल इसका ये होता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का सिंबल ये हो गया, दिस इज द एवरेज स्पीड सिंबल, है ना। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम वही था मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब ने इसको कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू। आप सोचो कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, कितने मालिक्यूल, किसकी v1 किसकी v2 किसकी v3, उन्होंने अपना गणित लगाया, मैथमेटिक्स लगा करके इसको कैलकुलेट किया। वो कैसे कैलकुलेट किया हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उन्होंने कैलकुलेट के कहा कि भाई ये सब जो इतना आप 3 जाम लिख रहे हो, इसकी वैल्यू सिंपली जो होती है वो किसके बराबर होती है, √8 RT बाई पाई एम। उन्होंने कहा ये इतना होता है, ये सब तो तुम कैलकुलेट कर रहे हो, इतना होता है उन्होंने बताया। 8 तो समझ ही रहे हो, पाई समझ ही रहे हो, टेम्परेचर तो समझ ही रहे हो, एम मालिक्यूलर वेट समझ रहे हो, गैस हो एयर हो, और आर होता है गैस कांस्टेंट। इन्होंने कहा आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 8.31, ये गैस कांस्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हम एक एक मालिक्यूल n1 n2 कहाँ काउंट करेंगे, अब उन्होंने किया होगा, जैसे भी किया होगा, तो हमको उससे लेना देना नहीं है, एवरेज वेलोसिटी इतनी आई। फिर किसी ने कहा भाई एवरेज स्पीड ही क्यों, एक स्पीड और निकालते हैं। क्या निकालते हैं, उन्होंने कहा ऐसा है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाला जाए इसका, क्योंकि एक थोड़ी ना है अनेक है यहाँ पे। उन्होंने कहा रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाला जाए, तो निकालो भाई रूट मीन स्क्वायर स्पीड, नाम से सुनो, स्क्वायर स्पीड मीन, मतलब स्पीड का स्क्वायर करो उसका मीन निकालो। यहाँ पे क्या किया था तुमने, स्पीड का मीन निकाला था, लैंग्वेज पे ध्यान देना। एवरेज स्पीड का मतलब जो स्पीड है उसका मीन निकालना, और यहाँ पे किसका निकालना है, स्क्वायर स्पीड, जो स्पीड है उसके स्क्वायर का मीन निकालना है। तो तुम क्या लिखोगे, n1 v1 स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, n2 v2 स्क्वायर, एंड सो ऑन। ऐसे क्या लिखोगे, nn vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या करोगे, वही एवरेज निकालना है तो सबको ऐड करना पड़ेगा, n1 प्लस n2 प्लस nn। तो ये हो गया
मीन स्क्वायर स्पीड। अब कहा रूट, तो इसका सबका अंडर रूट लगा अंडर, इसकी वैल्यू भी निकाली, इसकी भी मैक्सवेल साहब ने स्पीड निकाली। इसको ऐसे लिखा जाता है VRMS। उन्होंने इसको भी कहा भैया ऐसे कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, और जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो ये होगी, तुम इसको याद रखो VRMS। उन्होंने कहा इसकी जो वैल्यू होगी वो भी कुछ ऐसी ही होती है जैसे ये है, और उन्होंने कहा ये होगा 3RT/M, 3RT। उसके बाद उन्होंने कहा एक स्पीड और होती है, किसी ने कहा एक स्पीड और निकाली जाए। देखिए भाई अलग, जब कोई आज तो सब, आज भी जैसे होता है कोई ग्रुप में जैसे कोई चीज डिस्कवरी होती है तो एक थोड़ी ना होती है, 10 लोग होते हैं, 10 लोग का अपना अपना मत होता है। किसी ने कहा स्पीड का मीन निकालो, एवरेज निकालो, किसी ने कहा स्क्वायर का मीन निकालो, अंडर रूट कर लो, किसी ने कहा ये बताओ ये जो ग्रुप बनाए थे, ये ग्रुप बनाए हो, क्या इसमें सारे मालिक्यूल बराबर हैं? तो सब में बराबर तो है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो उन्होंने कहा ये बताओ सबसे ज्यादा किसमें मालिक्यूल है? तो मान लो तुम कि N3 में सबसे ज्यादा, मान लो N3 सबसे ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि वो ग्रुप जिसमें सबसे ज्यादा मालिक्यूल है, इसका मतलब जैसे मैक्सिमम मालिक्यूल वही स्पीड शो कर रहे हैं, है ना, तो उसको बोल दो तुम क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो ग्रुप है इसमें सबसे ज्यादा मालिक्यूल है, या इस ग्रुप में सबसे ज्यादा मालिक्यूल है, जिस भी ग्रुप में, वो ग्रुप जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा मालिक्यूल है वो जिस स्पीड को शो करेगा उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो उन्होंने कहा एक स्पीड और निकालो, वो हुआ आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। इसकी जो वैल्यू हुई, अब वो तो वही है कि जब वही जो डब्बा, वो जिस डब्बे में सबसे ज्यादा मालिक्यूल हो वो जिस स्पीड को से शो करेगा, जैसे मान लो V3 हमने मान लिया, इसी को हम लिखेंगे V3 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इसको भी उन्होंने कैलकुलेट किया मैक्सवेल साहब ने। उन्होंने कहा ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है उसकी वैल्यू आती है अंडर रूट 2RT/M। उन्होंने कैलकुलेट की, इतनी होती है। अब देखिए आपके सामने 3 स्पीड आ गई। एक स्पीड तो आ गई एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। वो जो V हमने लिया था वो कौन सा है, एवरेज है कि RMS है कि मोस्ट प्रोबेबल है? PV = 1/3 MN/V² में जो हम फार्मूले में V लिख रहे हैं वो कौन सा V है? वो ये V होता है, कंफ्यूज मत करना, जितने भी आपने बता दिया वो कौन सा V है, कौन सा फार्मूला। देखो ये जो हमारा फार्मूला आया था PV = 1/3 MN/V², यहाँ पे जो ये वाला V है ना, जो ये वाला V है ना स्टूडेंट, ये RMS स्पीड होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये RMS स्पीड है। RMS स्पीड को ही मान करके इसको डेरिवेशन किया गया है। तो अब आप देखो आपके सामने 3 स्पीड हो गई, कौन कौन सी हो गई, एवरेज 8/π। सब में देखो एक चीज बड़ा अच्छा है, कॉमन लिख रहा है कुछ, क्या कॉमन दिख रहा है, RT/M, यहाँ RT/M, यहाँ RT/M। अब अगर बात करें कॉमन को हटा करके तो एक में कितना आ रहा है, अंडर रूट 8/π, एक में कितना आ रहा है, अंडर रूट 3, एक में कितना आ रहा है, अंडर रूट 2। अंडर रूट 8/π माने देखो पाई 3 होता है तो 3 दूना 6। तो इसमें देखो ये सबसे छोटा कौन सा हुआ, अंडर रूट 2, फिर कौन सा हुआ, अंडर रूट 8/π, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, अंडर रूट 3। तो सबसे कम जो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, उससे ज्यादा कौन होती है, एवरेज स्पीड, उससे ज्यादा कौन होती है, RMS स्पीड। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई इनमें ऑर्डर क्या है ना, किस ऑर्डर में ये हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज लेस देन velocity average, velocity average is less than velocity RMS, velocity। ये इनका ऑर्डर हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका था लेक्चर, ठीक है ना, यहाँ तक का आपका फर्स्ट लेक्चर होता है।
इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, यू कैन आस्क. If anyone student have any doubt. Hello. 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 भगवान चलो हो गया सर पे मीटिंग किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? You can call and speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य person